We will continue with the biomedical importance of the nucleotides, and next biomedical importance is the carrier of intermediates. Nucleotides also serve as carriers of activated intermediates in the synthesis of some carbohydrates, lipids and proteins. तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये कैरी करते हैं एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट्स को फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को हमने देखा कि किस तरह अमीनो एसिड्स को लेके आती है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड्स के सिंथेसिस में भी दीज आर हैविंग अ कैरियर इंटरमीडिएट. द शुगर डेरिवेटिव्स UDP ग्लूकोज एंड UDP गैलेक्टोज पार्टिसिपेट इन शुगर इंटर कन्वर्शन. जब भी यूरिडीन डाइफॉस्फेट और यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज एंड यूरिडीन डाइफॉस्फेट गैलेक्टोज ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, क्योंकि गैलेक्टोज जब भी हम लेते हैं जो कि मिल्क प्रोटीन है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म इसका डायरेक्टली नहीं होता, ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू UDP glucose to be used in the body for the metabolism or for the biosynthesis of glycogen or starch. And in the biosynthesis of glycogen and the starch, similarly, nucleoside lipid derivatives such as cytosine diphosphate, acyl glycerol are intermediates in lipid biosynthesis. के जिस तरह ग्लूकोज से जो मोनोमर्स मिल के ग्लाइकोजन स्टार्च के लिए UDP ग्लूकोज और UDP गैलेक्टोज चाहिए, इसी तरह जब भी लिपिड बायोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे भी CTP और साइटोसिन डाइफॉस्फेट असाइल ग्लिसरॉल इज द इंटरमीडिएट. So this is another important function of the nucleotides. This is the diagrammatic presentation. We can see here that this UDP glucose and UTP plus glucose 1-phosphate are interconvertible by the enzyme UDP glucose pyrophosphorylase. Similarly, UDP galactose is interconvertible with the UDP glucose, and UDP glucose is regenerated from UDP galactose. अब ये UDP glucose चाहिए तो ये galactose जो यहाँ बन रहा है, ये जो हम बॉडी में हम ले रहे हैं ड्यूरिंग डाइट इंजेस्ट कर रहे हैं, जो वो गैलेक्टोज जो है UDP गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा और UDP गैलेक्टोज एपिमेरेज एंजाइम से ये UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च और ग्लाइकोजन और द other products in the body or in the plants. Another important function of nucleotide is coenzyme, or they act as a coenzyme. When linked with the vitamins, nucleotides are structural components of several essential coenzyme. For example, coenzyme A के जब ये vitamins के साथ nucleotides मिल जाते हैं तो ये coenzyme is different types के जो है ना वो coenzymes बना देते हैं. Coenzyme A is one of the example and the other is the FAD or flavin adenine dinucleotide. अब इसमें flavin जो है this is coming from the riboflavin which is a vitamin, and adenine dinucleotide is coming from the adenine or the nucleotide source. So यहाँ पे हमने देखा कि विटामिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ मिल गया और अल्टीमेटली एक जो है वो कोएंजाइम बना दिया. विल डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन विल डिस्कस द एंजाइमोलॉजी कि व्हाट आर द कोएंजाइम एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. द अदर कोएंजाइम्स आर द NAD and the NADP. NAD is again from the nicotinamide which is coming from a vitamin which is niacin, and adenine dinucleotide is a nucleotide part. So vitamins plus nucleotide जो है these are forming coenzymes. Similarly, nicotinamide adenine dinucleotide के साथ अगर phosphate लगा दें तो this will also act as a coenzyme. Regulatory compounds. Nucleotides are also important regulatory compounds for many of the pathways of intermediary metabolism. तो जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लियोटाइड्स आर रेगुलेटरी कंपाउंड्स
एंड एज ए इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो इंटरमीडिएट्स हैं वो उसकी रेगुलेशन जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स बाय इनहिबिटिंग और बाय एक्टिवेटिंग इट्स की एंजाइम्स। तो ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसके ऊपर रेगुलेटरी एंजाइम से चलते हैं, और ये रेगुलेटरी एंजाइम जो है दीज आर रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। Roles that nucleotides perform in the metabolic regulation include, अब metabolic regulation में इसका क्या फंक्शन है, क्या ये रोल परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इज द ATP डिपेंडेंट एंजाइम। ATP हमने डिफाइन किया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP डिपेंडेंट एंजाइम फॉस्फोराइलेशन इज की मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ATP डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें उस एंजाइम की फॉस्फोरिलेशन होगी या डिसफॉस्फोरिलेशन होगी, तो दोनों में से या एंजाइम एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा। सो दिस इज अगेन द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, एंड दिस इज अचीव्ड बाय द एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम बाय adenosine triphosphate, adenosine monophosphate and cytosine triphosphate। तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स को हम भी डिफाइन करेंगे कि एक उसकी एक्टिव साइट होती है, एक उसकी रेगुलेटरी साइट होती है अदर दैन द एक्टिव साइट। उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी या डिसफॉस्फोरिलेशन होगी, और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से होगा, ATP या AMP या CTP से। तो वो अल्टीमेटली उसको रेगुलेट करेगा, उसकी कन्फर्मेशन चेंज करेगा और उसकी एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। This is the diagram which shows the phosphorylation and dephosphorylation of an enzyme. This is a dephosphorylated enzyme and this is a phosphorylated enzyme. And we can see here that ATP is converted to ADP by the enzyme protein kinase. अब प्रोटीन काइनेज क्या करता है, यहाँ से एक फॉस्फेट लेता है और इस फॉस्फेट को उठा के यहाँ पे एंजाइम को दे देता है और ख़ुद ATP जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, ये फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम से ये अल्टीमेटली फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और दिस एंजाइम इज डीफॉस्फोरिलेटेड। अब ये फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन क्या करते हैं, दे विल आइदर इनहिबिट और एक्टिवेट ए पर्टिकुलर एंजाइम। फॉस्फोरिलेशन कैन आइदर एक्टिवेट or inhibit ATP dependent enzyme depending on the type of the enzyme. Similar is the case with the dephosphorylation. कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो फॉस्फोरिलेट होके एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो डीफॉस्फोरिलेट होके एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो फॉस्फोरिलेट होके इनहिबिट हो जाते हैं, एंड सम एंजाइम्स आर वो ऐसे होते हैं कि वो डीफॉस्फोरिलेट होके इनहिबिट हो जाते हैं। सो दिस फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन कैन इनहिबिट और activate a particular enzyme depending upon the type of the enzyme.